All right, students, it's 9 o'clock. Let's start our lecture. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. All right. So what we have done in last lecture, we have seen theory portion of themes and CSS, and along with that, we have also seen theory of master page, right? And by the end of the lecture, I have told you that we will see one example related to the master page, and along with that, the theory related to the directives, right? But before moving towards the theory related to the directives, today first we will see the topic that is page life cycle, right? So let's start. So first of all, we will see one example related to the master page. Now up till now what we have done, we have designed the master page, and from that master page we have tried to create content pages, right? So that was only the thing which we have done with the help of master page and content pages. But within this example, we will see that how we can access the controls of master page from the content page. As we have studied in last lecture that the master page and child page, or we can say master page and a content page, are the two different entities, right? दोनों अलग अलग चीजें हैं. So if I want to deal with one entity, then I need to use the class of that particular entity, right? But over here within this example, I will show you that how you can access the control of master page from the content page. मतलब कंटेंट पेज से हम मास्टर पेज के कंट्रोल को एक्सेस करेंगे और उसके अंदर वैल्यू को असाइन करेंगे, राइट? सो हियर आई हैव डिजाइन वन स्मॉल एग्जांपल, right? As you are able to see on the screen that I have designed the page. So over here I have used controls ex website जो हमने previous lectures में भी use की है, right? And within that website I have created two pages. Again I repeat, within this controls ex website I have created two pages. One is master page and second is content page. The name of the master page is masterpage.master and the name of the content page is childpage.aspx, right? All right. So first of all, let's see the design of the master page. Within the design of the master page, as we know that we use master page for structuring the page. So I have designed a small structure within which there is a header, right? Middle portion within which I have kept links on the left hand side, and on the right hand side I have placed content placeholder, and below that it is a footer within which I have specified copyright information. All right, now the most important part over here is within the header. What I have done, I have given welcome message, and along with that welcome message I have placed one text box control. Again I repeat, within the header on the master page I have given welcome message, and along with that I have placed one text box control, right? After that I have placed one content placeholder control over here, right, where I want a customized content or I want dynamic content for my content pages. All right, so this is a small design which I have done for the master page. Now from this master page I have created a child page, right? That is a content page which is over here. As you can see, the extension of this child page is .aspx, right? Means it is a web form or it is a web page, right? So as we know कि जब भी हम master page को हमारे content page के ऊपर inherit करेंगे तो by default master page की design तो हमें दिखाई देगी ही, but along with that we can also customize the content placeholder control which is placed on the master page. So यहाँ पे आप देखोगे कि बाकी की जगह पे आप कुछ भी modification नहीं कर सकते, as you are able to see रेड कलर क्रॉस आइकन, राइट? बट ये कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर आप डिजाइनिंग कर सकते हो. That's why within this content placeholder, first I have written one message that is enter your name. Then I have kept one text box control, right? The ID property of this text box control is txt value. Again I repeat, the ID property of this text box control is txt value. And after that I have kept one button, right? The ID property of the button is btn change and text property of the button control is change, right? So this is the small design which I have done on the childpage.aspx, which is a content page that is created from this master page, that is masterpage.master. All right, now what I want to do, whenever user enter the value within this text box and click on change button, then the value which is entered by the user
within this text box is to be appeared within this text box also. मतलब वो वैल्यू को मुझे यहाँ पे भी दिखानी है. This text box is on the master page. It is not on the content page. इसीलिए मैं यहाँ से उसको एक्सेस नहीं कर सकती. Right? So मुझे क्या करना है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है that is txt वैल्यू, राइट, जो कहाँ पे है, कंटेंट पेज के ऊपर है, राइट. ये कंटेंट पेज के ऊपर जब भी ये पेज रन होगा, यूजर क्या करेगा, इसके अंदर वैल्यू एंटर करेगा और चेंज बटन पे क्लिक करेगा. जैसे ही वो चेंज बटन पे क्लिक करता है, आई वांट टू डिस्प्ले द सेम वैल्यू विद इन दिस टेक्स्ट बॉक्स विच इज प्रेजेंट ऑन द मास्टर पेज. इट्स ओवर हियर, राइट. और ये टेक्स्ट बॉक्स जो मास्टर पेज के ऊपर है, उसकी आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की है txt नेम. अगेन आई रिपीट, जो टेक्स्ट बॉक्स मास्टर पेज के ऊपर है, उसकी आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की है txt नेम, राइट. सो इन सिंपल टर्म्स, अगर ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल एक ही पेज के ऊपर होते तो मुझे क्या करना होता, आई नीड टू राइट txt name dot text is equal to txt value dot text, राइट. अगेन आई रिपीट, अगर ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स एक ही पेज के ऊपर होते, अलग अलग एंटिटी के ऊपर नहीं होते, तो मैं एक सिंपल स्टेटमेंट लिखती, दैट इज txt name dot text is equal to txt value dot text. सो अपने आप ये जो हमारी फंक्शनलिटी है वो हो जाती. बट ओवर हियर द सिनेरियो इज दैट कि एक टेक्स्ट बॉक्स कंटेंट पेज के ऊपर है और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स मास्टर पेज के ऊपर है. तो सिंपल अगर मैं ऐसे असाइनमेंट करूंगी तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज दोनों पेज अलग अलग है. कल भी हमने देखा था कि वो दोनों एंटिटी को अलग अलग ही कंसीडर करता है. जब भी हम वो कंटेंट पेज के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, एट दैट टाइम वो क्या करेगा, मास्टर पेज को मर्ज करके हमें दिखाई देगा, राइट. लेकिन जो ASP.NET स्टोर करता है वो दोनों अलग अलग एंटिटी को स्टोर करता है. Means whether it is design time in source view or whether it is at run time, दोनों अलग अलग एंटिटीज ही होती है. ओनली द थिंग इज दैट हमें दिखाने के लिए वो उसको मर्ज करके हमें दे देता है. सो यहाँ पे अगर हम वो सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज txt name dot text is equal to txt value dot text, that will not work because both the text box are present on different entities, right. That is, one is on master page and another is on content page. So now what we can do, let's see the click event of this change button, right. So I have written a code of 3 lines, that is on the click event of the change button. First of all, I have created reference of text box control, that is dim txt as text box. Over here I have not used new keyword. Again I repeat, मैंने यहाँ पे new keyword use नहीं किया है. That's why वो object create नहीं करेगा, सिर्फ reference create करेगा, right. That is dim txt as text box. रेफरेंस का नेम होगा txt. अब वो रेफरेंस के अंदर मैंने क्या किया, me dot master. आपको पता है कि आप me कब यूज कर सकते हो, whenever you want to refer the current page, तो आप me कीवर्ड का यूज कर सकते हो, राइट. सो ये क्या करेगा, me क्या रिटर्न करेगा, करंट पेज का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, राइट. डॉट मास्टर, राइट, मतलब करंट पेज का जो मास्टर है. सो करंट पेज कौन सा है, चाइल्ड पेज. चाइल्ड पेज का मास्टर कौन सा है, ये, दैट इज मास्टर पेज डॉट मास्टर. उसमें से मुझे क्या करना है, उसमें से मुझे कंट्रोल को फाइंड करना है. दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड ओवर हियर दैट इज फाइंड कंट्रोल मेथड, राइट. कौन सा कंट्रोल फाइंड करना है, दैट इज txt नेम. मतलब अगेन आई रिपीट, मी दैट इज अ करंट पेज, मास्टर, मी का मास्टर मतलब करंट पेज का मास्टर, दैट इज दिस मास्टर पेज. उसके ऊपर से मुझे कंट्रोल फाइंड करना है, दैट इज आई हैव यूज्ड फाइंड कंट्रोल मेथड. कौन सा कंट्रोल फाइंड करना है, दैट इज txt नेम. मतलब मास्टर पेज के ऊपर से मुझे txt नेम का जो कंट्रोल है वो मुझे फाइंड करना है और उसका रेफरेंस मुझे ये txt के अंदर असाइन करना है. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन txt इक्वल टू, राइट. सो वो क्या करेगा, जब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मास्टर पेज पे से txt नेम कंट्रोल को फाइंड करेगा और उसका रेफरेंस txt के अंदर वो असाइन कर देगा. नाउ इट इज अ सिंपल टास्क. हमने जो स्टेटमेंट सोचा था वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है,
राइट, दैट इज txt.text इज इक्वल टू txt value.text। लेकिन हमने क्या सोचा था, txt name.text इज इक्वल टू txt value.text। मैंने तब बोला था कि ऑब्वियसली हम ऐसा सिंपल स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, बिकॉज txt name कहाँ पे है, मास्टर पेज के ऊपर है, राइट। सो इसीलिए मैंने सिंपल क्या किया, वो पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का रेफरेंस फाइंड किया, txt के अंदर असाइन कर दिया, और बाद में हमने जो स्टेटमेंट सोचा था वही स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया, दैट इज txt.text इज इक्वल टू txt value.text। मीन्स जब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वो जो भी ये टेक्स्ट कंटेंट पेज के ऊपर जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है, वो मास्टर पेज के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो असाइन कर देगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ सिंपल एग्जांपल कि आप कैसे कंटेंट पेज के ऊपर से मास्टर पेज के कंट्रोल को आप एक्सेस कर सकते हो। Let's execute this page. All right, as you are able to see, child page.aspx browser के अंदर लोड हो गया है, right? It is asking me name, so I will write Dr. Nikisha Jariwala and I will click on change button. See, you are able to see over here Dr. Nikisha Jariwala. This control, this text box control is on content page and this text box control is on master page, right? सो दिस इज पॉसिबल बिकॉज हमने क्या किया था, हमने मास्टर पेज के ऊपर जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका रेफरेंस गैदर किया था, और वो रेफरेंस के टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमने वो टेक्स्ट असाइन की थी जो कंटेंट पेज के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है, राइट। सो इस तरह से आप अगर कोई भी कंट्रोल के मतलब कंट्रोल को एक्सेस करना चाहते हो या फिर उसको मॉडिफाई करना चाहते हो, then it is possible. Only the thing is that you need to remember कि आपको करंट पेज के ऊपर से मास्टर पेज को रेफरेंस करना है और मास्टर पेज के ऊपर पर्टिकुलर कंट्रोल को फाइंड करना है और उसका रेफरेंस वो पर्टिकुलर कंट्रोल के क्लास के रेफरेंस के अंदर असाइन करना है, राइट। सो इस हिसाब से आप कर सकते हो। So students, this is all about the example that how you can access controls of master page from the content page. All right. So as we have discussed, ये एग्जाम्पल के बाद हम ऑब्वियसली थियोरी डिस्कस करेंगे, और थियोरी वी विल डिस्कस फॉर पेज लाइफ साइकिल, राइट। एज आई हैव टोल्ड कि डायरेक्टिव्स हम बाद में देखेंगे, पहले ये पेज लाइफ साइकिल देख लेते हैं बिकॉज दैट इज नीडेड फर्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट द थियोरी। ऑलराइट, सो हियर वी गो, दिस इज द डायग्राम of page life cycle. It is also known as runtime compilation, but obviously within exam you will be asked that explain page life cycle, right? Now what is the scenario? हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि कैसे पूरा एग्जीक्यूशन होता है, right? As ASP.NET follows compiled code model, right? So उसके अंदर क्या होगा, जब भी हम पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, मैं पहले जनरल सिनारियो आपको समझा देती हूँ, राइट। जब भी हम पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, वो क्या करेगा, पहले वो सर्च करने जाएगा कि ये पेज का पेज क्लास एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, राइट। अगर वो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट है, इफ इट इज अ सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट, ऑब्वियसली पेज क्लास विल एग्जिस्ट। तो वो पेज क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वो रेफरेंस दे देगा, राइट। और अब अगर वो फर्स्ट रिक्वेस्ट है, राइट, मतलब पहले कभी भी ये पर्टिकुलर पेज के लिए रिक्वेस्ट नहीं आई है, तो वो क्या करेगा, वो पूरा लाइफ साइकिल के अंदर एंटर हो जाएगा, और बाय द एंड ऑफ लाइफ साइकिल अगेन वो उसका पेज क्लास जनरेट करेगा और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमारी रिक्वेस्ट को सर्व कर देगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर इज कि जब भी पहले से कंपाइल किया हुआ पेज होता है, वो पूरी पेज लाइफ साइकिल को एग्जीक्यूट नहीं करता, बिकॉज उसके पास पहले से पेज क्लास एग्जिस्ट करता है, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर। दैट्स व्हाई हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी हम कंपाइल कोड यूज करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या मिलता है, पहले से ही वो पेज क्लास एग्जिस्ट करता है, तो जो भी हमारा रिस्पॉन्स है वो फास्टर मैनर में हमें मिलता है, right? So this is the thing which we need to consider over here. All right. So likewise यहाँ पे diagram है, right? As you are able to see, अगर कोई भी यूजर रिक्वेस्ट करता है ASPX पेज की, right? So वो ASPX पेज के लिए रिक्वेस्ट करेगा। So पहले क्या होगा, वो अगर वो फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट है तो ऑब्वियसली ये पेज लाइफ साइकिल के अंदर एंटर होगा, लेकिन अगर वो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट है, एंड राइट नाउ वी एज्यूम
that it is a subsequent request. So वो क्या करेगा, वो पेज क्लास फाइंड करने के लिए जाएगा, राइट? और अगर उसको पेज क्लास मिलता है, राइट, तो उसको इंस्टेंशिएट करने की रिक्वेस्ट भेजेगा और बाद में पेज क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेगा और उसको रिस्पॉन्स दे देगा। मतलब हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो पहले से जो पेज क्लास क्रिएट किया हुआ है वो पर्टिकुलर पेज के लिए, उसी में से हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा, अगर वो पेज चेंज नहीं हुआ है तो, राइट? बट इफ द सिनेरियो इज दैट कि दो पहले से पेज क्लास एग्जिस्ट करता है, हम वही पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, बट वो मॉडिफाई हुआ है, चेंज हुआ है, तो अगेन वो क्या करेगा, फिर से उसको पेज क्लास जनरेट करना पड़ेगा। सो एट दैट टाइम ऑल्सो ये जो पेज लाइफ साइकिल है वो एग्जीक्यूट होगी, राइट? अगेन आई रिपीट, जब भी हमें ASP.NET इंजन को पेज के लिए रिक्वेस्ट मिलती है, दैट इज ASPX पेज के लिए रिक्वेस्ट मिलती है, वो क्या करेगा, वो चेक करने के लिए जाएगा कि पहले से वो पर्टिकुलर पेज के लिए पेज क्लास एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर वो पेज क्लास एग्जिस्ट करता है तो वो इंस्टेंशिएट करने की रिक्वेस्ट भेजेगा, इंस्टेंशिएट करेगा और हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मीन्स अगर पहले से पेज क्लास है तो इतने ही पोर्शन में से हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स वाई हमें परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा अगर पहले से कंपाइल किया हुआ पेज क्लास है तो। नाउ वी एज्यूम कि ऑब्वियसली इट इज अ फर्स्ट रिक्वेस्ट, मतलब पेज क्लास एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? सो यूजर क्या करेगा, ASPX पेज की रिक्वेस्ट करेगा। नाउ द पेज विल एंटर इन द पेज लाइफ साइकिल, राइट? सो फर्स्ट स्टेज इज दैट कि वो ASPX इंजन को पार्स करने की रिक्वेस्ट करेगा। पार्सिंग मीन्स वो पर्टिकुलर पेज के लिए सारी चीजें चेक होगी, दैट इज उसके ऊपर जो भी रेफरेंसेस रिक्वायर्ड है, जो भी कंट्रोल्स यूज किए हैं, जो भी सिंटैक्स लिखी है, वो सारी चीजें बराबर है कि नहीं है, मतलब एरर है कि नहीं है, रेफरेंसेस बराबर है कि नहीं है, या कोई क्लास या फिर कोई फंक्शन के लिए जो नेम स्पेस है या फिर कोई भी चीज वहां पे मिसिंग है कि नहीं है, राइट? इफ एवरीथिंग वर्क्स परफेक्ट विथ ASPX इंजन तो वो क्या करेगा, पेज क्लास जनरेट करने की रिक्वेस्ट देगा, राइट? जब भी वो पेज क्लास जनरेट करने की रिक्वेस्ट करेगा, वी नो कि हमने डिजाइनिंग अलग एंटिटी मतलब फाइल के अंदर की है और हमारा जो लॉजिक है वो डिफरेंट फाइल के अंदर है। हमने विजुअल स्टूडियो में देखा है कि जब भी हम पेज क्रिएट करते हैं, राइट, देन टू पेजेस आर क्रिएटेड, मतलब टू फाइल्स आर क्रिएटेड, दैट इज फर्स्ट इज .aspx एंड सेकेंड इज .aspx.vb, मतलब दो फाइल्स जनरेट होती है, राइट? सो जब भी ये पेज क्लास जनरेट करने की रिक्वेस्ट करेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, पेज क्लास जनरेट करने के लिए जो वो डिजाइनिंग वाली फाइल है, दैट इज .aspx फाइल है, उसके साथ साथ कोड बिहाइंड क्लास है। कोड बिहाइंड क्लास मतलब हमारी जो कोड फाइल है, दैट इज .aspx.vb, राइट? वो दोनों चीज को उसको कंबाइन करना पड़ेगा और कंबाइन करने के बाद उसे कंपाइल करना पड़ेगा, राइट? अगेन आई रिपीट, जब भी ASPX इंजन पेज क्लास जनरेट करने की रिक्वेस्ट भेजेगा, वो .aspx दैट इज जिसके अंदर हमारा सोर्स कोड होगा, जिसके अंदर हमारी डिजाइनिंग होगी, वो तो वो एक्सेस करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या एक्सेस करेगा, कोड बिहाइंड क्लास एक्सेस करेगा। व्हाट इज कोड बिहाइंड क्लास? जिसके अंदर हमने कोड लिखा है, जिसके अंदर हमने लॉजिक लिखा है, राइट? दैट इज .aspx.vb, वो उसको एक्सेस करेगा, दोनों को कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद, मिक्स करने के बाद वो क्या कंपाइलेशन स्टार्ट करेगा। और अगर अच्छी तरह से दोनों चीज कंबाइन होके कंपाइल हो जाती है, इट मीन्स वो उसका क्लास जनरेट कर देगा, मतलब दोनों चीज को मिक्स करके एक क्लास वो जनरेट करेगा, राइट? एंड आफ्टर दैट हम वो पर्टिकुलर क्लास का यूज करके कोई भी यूजर की रिक्वेस्ट को सर्व कर सकते हैं, राइट? मतलब आफ्टर जनरेटिंग पेज क्लास हम उसको रेंडर कर सकते हैं, ताकि हम इस हिसाब से उसको कन्वर्ट कर पाए कि वो ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले हो सकता है, राइट?
सो स्टूडेंट्स दिस इज अबाउट द पेज लाइफ साइकिल कि अगर हमारे पास पहले से पेज क्लास प्रेजेंट है तो उसका बिहेवियर क्या होगा, और अगर हमारे पास पहले से पेज क्लास एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसका बिहेवियर क्या होगा। ओवर हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जब भी फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट होगी तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा परफॉर्मेंस कम मिलेगा, और अगर वो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट है तो हमें परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, राइट। सो ये जो पेज लाइफ साइकिल है वो अलग अलग फेजेस के अंदर वर्क करता है, राइट। सो लेट्स सी दोस फेजेस कि वो कौन से फेजेस के अंदर वर्क करता है। ऑलराइट, सो द फर्स्ट फेज इज पेज रिक्वेस्ट। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यूजर का फर्स्ट टास्क कौन सा होगा, ASPX पेज के लिए वो रिक्वेस्ट करेगा, फिर वो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट हो या फिर फर्स्ट रिक्वेस्ट हो, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज यूजर क्या करेगा, URL के अंदर पेज के लिए URL लिखेगा, राइट, और पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा। जब भी पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, राइट, पेज लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी, राइट। पेज लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी मतलब अगर फर्स्ट रिक्वेस्ट है तो पूरी ये लाइफ साइकिल एग्जीक्यूट होगी, और अगर सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट है तो इतना ही पार्ट एग्जीक्यूट होगा लाइफ साइकिल का, राइट। सो पेज लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी और उसके साथ साथ वो क्या करेगा, इफ इट इज अ फर्स्ट रिक्वेस्ट तो उसे क्या करना पड़ेगा, पार्सिंग करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, राइट। और वो डिटेक्ट करेगा कि पर्टिकुलर पेज के लिए पार्सिंग और कंपाइलेशन अभी करना है कि नहीं करना है। मीन्स अगर फर्स्ट रिक्वेस्ट है तो ऑब्वियसली पार्सिंग और कंपाइलेशन करना पड़ेगा, और अगर वो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट है तो ये पार्सिंग और कंपाइलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही ये इंस्टेंशिएट पार्ट में चला जाएगा। सो विद इन पेज रिक्वेस्ट यूजर जब भी पेज के लिए रिक्वेस्ट करेगा, राइट, पेज लाइफ साइकिल स्टार्ट करने से पहले वो चेक कर लेगा दैट वेदर इट इज अ फर्स्ट रिक्वेस्ट और अ सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट। आफ्टर दैट वो स्टार्ट फेज के अंदर जाएगा। स्टार्ट फेज के अंदर क्या होगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज सेट होगी, दैट इज रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज सेट होगी, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज सेट होगी, पेज क्लास की भी दो प्रॉपर्टी है, दैट इज पोस्ट बैक कल्चर, राइट। ये सारी प्रॉपर्टी सेट होगी, मतलब उसके अंदर क्या करना पड़ेगा कि अगर वो पोस्ट बैक है, राइट, तो आपको पता है कि अगर पोस्ट बैक है तो उसके लिए पूरा एग्जीक्यूशन अलग हिसाब से होता है, बिकॉज पेज सर्वर के ऊपर जाता है और सेम पेज प्रोसेसिंग होके हमें वापस मिलता है। दैट्स वाई ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, इस पोस्ट बैक और ये जो कल्चर है उसकी सारी प्रॉपर्टीज वो चेक होगी, राइट। उसके बाद पेज कौन से फेज में जाएगा, पेज इनिशियलाइजेशन फेज के अंदर जाएगा। पेज इनिशियलाइजेशन फेज के अंदर क्या होगा, राइट, कंट्रोल जो पेजेस के ऊपर है, राइट, उसकी आईडी प्रॉपर्टी सेट होगी, और उसके बाद आईडी प्रॉपर्टी सेट करने के बाद वो थीम सप्लाई करेगा। हमने थीम्स वाला जो पोर्शन था उसके अंदर हमने देखा था कि हम पेज की प्री इनिट इवेंट के अंदर रन टाइम पे भी थीम सेट कर सकते हैं। इट मीन्स पेज जब भी इनिशियलाइज होता है, राइट, कंप्लीटली इनिशियलाइज हो जाता है, उस वक्त उसके पास थीम्स होनी चाहिए, राइट। दैट्स वाई पेज इनिशियलाइजेशन फेज के अंदर कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी पहले सेट होगी और उसके बाद थीम्स भी अप्लाई हो जाएगी, राइट। अब अगर ये जो रिक्वेस्ट है वो पोस्ट बैक रिक्वेस्ट है, राइट, अगर वो पोस्ट बैक रिक्वेस्ट है देन एट दिस स्टेज कोई भी पोस्ट बैक के डेटा लोड नहीं होंगे और कंट्रोल्स के डेटा भी व्यू स्टेट में से रिस्टोर नहीं होंगे। अगेन आई रिपीट, पेज इनिशियलाइजेशन के वक्त अगर पोस्ट बैक है देन टू ये फेज के अंदर पोस्ट बैक के डेटा और कंट्रोल्स के डेटा रिस्टोर नहीं होंगे फ्रॉम द व्यू स्टेट, राइट। वो कब रिस्टोर होंगे, ऑब्वियसली दे विल बी रिस्टोर्ड विद इन द लोड फेज। पेज लोड के ऊपर वो सारी चीजें रिस्टोर होगी। सो लोड फेज के अंदर क्या होगा, अगर वो पोस्ट बैक रिक्वेस्ट है तो पोस्ट बैक के डेटा लोड होंगे, और जो कंट्रोल्स की वैल्यूज है वो भी व्यू स्टेट में से वो लेगा और उसको रिस्टोर करेगा, राइट। सो दैट इज विद इन द लोड फेज। के लोड फेज के अंदर हमको भी पता है कि जब भी हम पेज लोड इवेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके अंदर हम
वो सारी चीजें कर सकते हैं जो कंट्रोल्स के ऊपर बाय डिफॉल्ट करनी है, अगर वो फर्स्ट टाइम पेज लोड होता है या फिर पोस्ट बैक होता है, फिर भी हम पेज लोड के ऊपर वो सारी चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं। आफ्टर दैट द फेज इज दैट इज वैलिडेशन फेज। सो वैलिडेशन फेज के अंदर एज द नेम सेज हमें क्या करना है, वैलिडेशन फेज के अंदर अगर कंट्रोल्स पेज के ऊपर प्रेजेंट है, उसके ऊपर हमने वैलिडेशन कंट्रोल यूज किए हैं, तो वो सारे कंट्रोल्स की वैलिडेट मेथड को कॉल करेगा। वैलिडेट मेथड को कॉल करने के बाद अगर सारे कंट्रोल्स के ऊपर वैलिडेशन परफेक्टली एग्जीक्यूट होते हैं, तो पेज की जो इज वैलिड प्रॉपर्टी है वो उसको ट्रू सेट करेगा, राइट। और अगर सारे कंट्रोल्स वैलिडेशन कंट्रोल्स के वैलिडेशंस परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली वो इज वैलिड प्रॉपर्टी को फॉल्स सेट कर देगा। इसलिए अगर आपको ध्यान हो तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर सबमिट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर फर्स्ट थिंग विच वी हैव चेक इज इफ इज वैलिड देन, मतलब सारे वैलिडेशंस अगर परफेक्टली एग्जीक्यूट हुए हैं तो हमें क्या करना है, राइट। सो इसीलिए हमने वहां पे इज वैलिड प्रॉपर्टी का यूज किया था। आफ्टर दैट अगर कोई पोस्ट बैक इवेंट एग्जीक्यूट करनी है, सो वो इवेंट यहाँ पे हैंडल हो जाएगी, राइट। दैट इज अगर ड्यूरिंग पोस्ट बैक कंट्रोल के ऊपर कोई इवेंट फायर हुई है और वो कंट्रोल की इवेंट के ऊपर कुछ लॉजिक लिखा है और उसको एग्जीक्यूट करना है, तो ये फेज के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। एंड आफ्टर दैट द रेंडरिंग फेज विल कम। रेंडरिंग फेज के अंदर आपको तो पता ही है कि पेज को उस हिसाब से रेंडर करना है ताकि वो ब्राउजर के अंदर लोड हो पाए, राइट। सो इन दिस फेज क्या क्या कौन कौन सी चीजें होगी, पहले दैट इज रेंडर मेथड कॉल होगी, राइट। और रेंडर मेथड क्या करेगा, कंट्रोल्स और पेजेस जो हम कंट्रोल्स जो हमारे पेज के ऊपर है, राइट, उसके अंदर जो भी चीजें इनिशियलाइज हुई है उसके हिसाब से वो आउटपुट क्रिएट करेगा और वो आउटपुट किसको भेजेगा, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को भेजेगा। बिकॉज हमें पता है कि अगर हम कोई भी चीज सर्वर के पास से रिक्वेस्ट करते हैं तब हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और अगर सर्वर कोई चीज हमें भेजता है तो वो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का यूज करता है। दैट्स वाई रेंडरिंग फेज के अंदर रेंडर मेथड जब भी कॉल होगी, कंट्रोल्स जो भी हमारे पेजेस के ऊपर है, राइट, उसके लिए पूरा आउटपुट जनरेट होगा और वो आउटपुट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को मिलेगा, राइट। और उसके बाद रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का यूज करके हमें पेज ब्राउजर के अंदर दिखाई देगा, राइट। सो दिस इज द थिंग विच इज कवर्ड विद इन द रेंडरिंग फेज। लेकिन रेंडरिंग फेज के अंदर हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि ये रेंडरिंग फेज जब भी एग्जीक्यूट होता है उससे पहले वो क्या कर देता है, पेज के लिए जो व्यू स्टेट है और कंट्रोल्स है उसकी वैल्यू वो पहले से सेव रखेगा, ताकि अगर यूजर पेज लोड होने के बाद उसके अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं और हमें कंपेयर करना है प्रीवियस वैल्यू के साथ, वो तो हम वो अच्छी तरह से कर पाए। एंड द लास्ट फेज, ऑब्वियसली अगर यूजर का टास्क कंप्लीट हो जाता है तो पेज अनलोड होगा, राइट। पेज अनलोड होगा मतलब पेज डिस्पोज करना है, पेज को डिस्ट्रॉय करना है। और हमें पता है कि जब भी हम पेज की अनलोड इवेंट फायर करेंगे तो हम ऐसी सारी चीजें इसके ऊपर, ऐसे सारे टास्क हम इसके ऊपर करेंगे जो पेज डिस्ट्रॉय होने से पहले जरूरी है। दैट इज फॉर एग्जाम्पल अगर कनेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और कनेक्शन ओपन है तो हम इसके ऊपर क्लोज कर देंगे, राइट। कोई फाइल क्लोज करनी है तो वो हम क्लोज करेंगे। अगर हम ये पेज के लिए लॉग मेंटेन करते हैं और हमें वो लॉग कंप्लीट करना है, राइट, क्लोज करना है, तो वो भी हम अनलोड इवेंट अनलोड फेज के अंदर हम कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो दीज आर द फेजेस के जब भी ये पर्टिकुलर पेज लाइफ साइकिल एग्जीक्यूट होती है तो पेज लाइफ साइकिल के वक्त इतने फेजेस वो एग्जीक्यूट करता है। दैट इज द फर्स्ट फेज इज पेज रिक्वेस्ट। उसके अंदर क्या होगा, पेज के लिए रिक्वेस्ट होगी, राइट, और वो चेक करेगा कि ये पेज को पार्सिंग की जरूरत है और कंपाइलेशन की जरूरत है कि नहीं है, राइट। उसके बाद वो स्टार्ट फेज के अंदर एंटर होगा। स्टार्ट फेज के अंदर वो सेवरल प्रॉपर्टीज है उसको सेट करेगा, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, इज पोस्ट बैक, कल्चर प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल कल्चर प्रॉपर्टी हम
उसके अंदर क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम उसको हिंदी सेट करेंगे तो पेजेस के ऊपर जो टेक्स्ट अपीयर होंगे, राइट, वो हिंदी के अंदर आएंगे। मतलब कंट्रोल के टेक्स्ट की मैं बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैलेंडर कंट्रोल रखा है, राइट, और कैलेंडर कंट्रोल अभी जब भी हम कैलेंडर कंट्रोल रखेंगे तो जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वो इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर मैं कल्चर प्रॉपर्टी को हिंदी सेट करती हूँ तो वो सारी चीज हिंदी में लिखी हुई हमें दिखाई देगी। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी। वो पेज क्लास की प्रॉपर्टी है, राइट। सो विद इन स्टार्ट फेज ये चेक करेगा, राइट, कि ये पोस्ट बैक रिक्वेस्ट है या फिर फर्स्ट रिक्वेस्ट है। आफ्टर दैट पेज इनिशियलाइजेशन फेज आएगा। पेज इनिशियलाइजेशन के वक्त क्या होगा, ऑब्वियसली जो भी पेज के ऊपर कंट्रोल्स है उसकी आईडी प्रॉपर्टी सेट होगी और उसके बाद थीम्स अप्लाई हो जाएगी। और उसके बाद वो चेक करेगा कि अगर वो पोस्ट बैक है तो भी वो ये फेज के अंदर पोस्ट बैक डेटा और कंट्रोल्स के डेटा रिस्टोर नहीं करेगा व्यू स्टेट के अंदर से, राइट। वो कब रिस्टोर होंगे, ऑब्वियसली वो लोड फेज के अंदर वो रिस्टोर होंगे। सो लोड फेज के अंदर क्या करना है कि अगर वो पोस्ट बैक रिक्वेस्ट है तो वो पोस्ट बैक के डेटा लोड करेगा और कंट्रोल्स के डेटा भी रिस्टोर करेगा जो व्यू स्टेट के अंदर है। वैलिडेशन फेज के अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली ये फेज के अंदर वो वैलिडेशन चेक करेगा। कंट्रोल्स, अगर हमने वैलिडेशन कंट्रोल यूज किए हैं तो उसकी वैलिडेट इवेंट को वो फायर करे, वैलिडेट मेथड वो फायर करेगा। और वैलिडेट मेथड फायर करने के बाद अगर सारे वैलिडेशन परफेक्टली एग्जीक्यूट होते हैं तो वो क्या करेगा, इस वैलिड प्रॉपर्टी को वो ट्रू सेट कर देगा। आफ्टर दैट इट इज पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग। ऑब्वियसली पोस्ट बैक कब होता है, अगर कोई कंट्रोल कोई इवेंट फायर करता है जिसके लिए प्रोसेसिंग करने की जरूरत है, उस वक्त पोस्ट बैक इवेंट फायर होती है। सो वो पर्टिकुलर इवेंट यहाँ पे वो हैंडल हो जाएगी, मतलब वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। रेंडरिंग के अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली रेंडरिंग फेज से पहले वो व्यू स्टेट और कंट्रोल्स के डेटा सेव कर देगा और उसके बाद रेंडर मेथड को कॉल करेगा। रेंडर मेथड क्या करेगा, पेज के ऊपर जो कंट्रोल्स है वो सारी चीज के लिए वो आउटपुट जनरेट करेगा और वो आउटपुट किसको दे देगा, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को दे देगा, राइट। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर जो आउटपुट स्ट्रीम प्रॉपर्टी है उसको वो दे देगा। अगर मोर प्रिसाइज इफ वी टॉक तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर जो आउटपुट स्ट्रीम प्रॉपर्टी है उसको वो दे देगा। एंड बाय द एंड इट इज अनलोड। अनलोड के अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली ये फेज तब एग्जीक्यूट होगा जब हमें पेज डिस्ट्रॉय करना है या फिर डिस्पोज करना है। सो ऑब्वियसली इसके ऊपर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के अंदर जो वैल्यूज है वो हम अनलोड करेंगे। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के अंदर जो वैल्यूज है उसको हम अनलोड कर देंगे। और उसके साथ साथ अगर ऐसा कोई टास्क है, फॉर एग्जांपल कनेक्शन क्लोज करना है, फाइल क्लोज करना है, सो वो सारी चीजें भी हम ये अनलोड फेज के अंदर करेंगे, राइट। ऑब्वियसली अगर पेज क्लास है तो उसके लिए इवेंट्स भी होगी, राइट। सो दीज आर द इवेंट्स ऑफ पेज क्लास जो ये पेज लाइफ साइकिल के वक्त अपने आप कॉल होती है, राइट। और अगर जरूरत पड़े तो हम भी इसको एक्सप्लिसिटली कॉल कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इवेंट इज पेज प्री इनिट। एज आई हैव टोल्ड कि ये जो पेज इनिशियलाइजेशन फेज है यहाँ पे, राइट, उस वक्त बहुत सारी चीजें इनिशियलाइज होती है। सो there are two events which are associated with this page initialization phase. Which are the events? That is page pre-init and page init. Means these are the two events के जो किसके साथ वर्क करेगी, पेज इनिशियलाइजेशन फेज के साथ वो वर्क करेगी। ऑलराइट, सो फर्स्ट इज पेज प्री इनिट। प्री इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन से पहले थोड़ा बहुत जो चेंजेस हमें करना है वो। सो पेज प्री इनिट इवेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, या फिर मोर प्रिसाइज ये इवेंट हम कब यूज कर सकते हैं, अगर हमें चेक करना है कि इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, राइट, मतलब इस पोस्ट बैक की वैल्यू चेक करनी है। अगर वो ट्रू है तो ऑब्वियसली ये पोस्ट बैक रिक्वेस्ट है, और अगर वो फॉल्स है इट मीन्स ये फर्स्ट रिक्वेस्ट है, राइट। अगर हमें डायनामिक कंट्रोल्स को क्रिएट करना है या फिर रिक्रिएट करना है, राइट, तभी भी हम ये पेज प्री इनिट इवेंट का यूज कर सकते हैं। मास्टर पेज को सेट कर सकते हैं, थीम्स को सेट कर सकते हैं, यूजर प्रोफाइल को हम सेट कर सकते हैं। ये तो हमने देखा ही है कि हम कैसे रन टाइम के ऊपर मास्टर पेज और थीम्स प्री इनिट इवेंट के अंदर सेट कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द टास्क for which we can use this page pre-init event, right? After that, it is page init event. Obviously,
वो कब एग्जीक्यूट होगी? प्री इनिट इवेंट पूरी एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगी। इसके अंदर हमें क्या करना है? कंट्रोल्स की वैल्यू को रिट्राइव करके इनिशियलाइज करना है, राइट? अगेन आई रिपीट, कंट्रोल्स की वैल्यू को रिट्राइव करके उसको इनिशियलाइज करना है। आफ्टर दैट इट इज पेज प्रीलोड एंड पेज लोड। मतलब ये जो लोड का जो फेज है इसके अंदर, राइट, दैट इज दिस वन, उसके साथ भी टू इवेंट्स एसोसिएटेड है, राइट, दैट इज पेज प्रीलोड। आई थिंक स्लाइड के ऊपर I have not written for preload, but there are two events, that is page preload and page load, right? पेज प्रीलोड इवेंट के अंदर क्या होगा? एज इट इज सेड, वो लोडिंग होने से पहले अगर हमें कोई भी चीज एग्जीक्यूट करनी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं? हम व्यू स्टेट के डेटा, पोस्ट बैक के डेटा जो कंट्रोल्स के लिए पहले से सेव्ड है उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, राइट, ऐसा कोई टास्क जो पेज लोड से पहले हमें करना है, फॉर एग्जाम्पल व्यू स्टेट के डेटा या फिर पोस्ट बैक के डेटा हमें फिर से कंट्रोल के अंदर रिस्टोर करने हैं, तो हम पेज की प्रीलोड इवेंट का भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट इट इज पेज लोड, वो तो आपको पता ही है, हमने बहुत बार उसको यूज किया है, राइट, कि पेज लोड के ऊपर हम ऐसे सारे टास्क करेंगे जो पेज ब्राउजर के अंदर दिखाई दे उससे पहले हमें जो जो चीजें करनी है वो, फॉर एग्जांपल हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, राइट, हमें कोई भी वैल्यूज को इनिशियल, कोई भी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है। व्यू स्टेट के अंदर अगर हमने कोई नेम वैल्यू पेयर स्टोर करनी है तो उसके लिए अगर हमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो भी हम वो पेज लोड के ऊपर हम कर सकते हैं, ताकि जब भी पेज ब्राउजर के अंदर लोड हो उससे पहले पेज के ऊपर हमें जो जो टास्क परफॉर्म करने हैं वो हम पेज लोड के ऊपर कर सकते हैं, राइट। कंट्रोल्स के लिए अगर आपको कोई प्रॉपर्टी सेट करनी है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। देन इट इज कंट्रोल्स इवेंट। कंट्रोल इवेंट्स मतलब अगर बटन की क्लिक इवेंट के लिए ये एग्जीक्यूट करना है तब वो कर सकते हो। सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट के लिए एग्जीक्यूट करना है, मतलब वो इवेंट एग्जीक्यूट करनी है, वो भी आप ऑब्वियसली ब्राउजर के अंदर पेज लोड होता है उसके बाद ही आप क्या करते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो। लेकिन यहाँ पे ये जो कंट्रोल इवेंट है उसको आप यहाँ पे जो पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग है उसके साथ भी आप कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज पोस्ट बैक इवेंट तभी होती है जब भी हम कोई कंट्रोल के ऊपर कोई इवेंट एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। आफ्टर दैट इट इज पेज प्री रेंडर। पेज प्री रेंडर इवेंट कब एग्जीक्यूट होगी, राइट, अगर हमें पेज के ऊपर फाइनल चेंजेस करने हैं, कंट्रोल्स के अंदर फाइनल चेंजेस करने हैं, राइट, तो हम ये पेज के लिए प्री रेंडर इवेंट का यूज कर सकते हैं, राइट, बिकॉज एज वी नो कि रेंडरिंग का मीनिंग क्या है कि हमें पेज को उस हिसाब से कन्वर्ट करना है ताकि वो ब्राउजर के अंदर लोड हो पाए, राइट। सो इसलिए पेज प्री रेंडर के ऊपर वो सारी चीजें होगी जो फाइनल चेंजेस हमें करने हैं। And after that, last event is page unload. Page unload, as it is associated with this unload phase, उसके अंदर क्या होगा, as I have already told, right, वो सारे कंट्रोल्स के लिए जो पेज के ऊपर है हमें कोई भी टास्क करना है वो सारी चीजें हम ये पेज अनलोड इवेंट के ऊपर कर पाएंगे, ताकि इसके बाद हम पेज को डिस्ट्रॉय कर सके, हम पेज को डिस्पोज कर सके। मीन्स वी कैन से इट कैन बी यूज फॉर फाइनल क्लीनअप। फाइनल क्लीनअप के अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी, फॉर एग्जाम्पल एज आई हैव टोल्ड, अगर आपको लॉग को कंप्लीट करना है, फाइल्स को क्लोज करना है, कनेक्शन को क्लोज करना है, मीन्स अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करना है पेज अनलोड हो उससे पहले, तो आप पेज अनलोड इवेंट का यूज कर सकते हो, राइट। सो दीज आर द इवेंट्स विच आर एसोसिएटेड विथ पेज लाइफ साइकिल। मतलब अगर आपको पेज लाइफ साइकिल एग्जाम में आता है एंड इफ इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको फेजेस भी एक्सप्लेन करने हैं और उसके साथ साथ ये इवेंट्स भी एक्सप्लेन करनी है, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। सो ये इवेंट शॉर्ट में फिर से रिपीट कर देते हैं। सो फर्स्ट इवेंट इज पेज प्री इनिट इवेंट। पेज प्री इनिट इवेंट के अंदर ऑब्वियसली इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी चेक होगी, राइट। ऑब्वियसली उसके ऊपर से हमें क्या पता चलेगा कि पेज फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट है या फिर सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट है। उसके साथ साथ अगर हमें डायनामिक कंट्रोल्स क्रिएट करने हैं, रिक्रिएट करने हैं, थीम्स प्रॉपर्टी, मास्टर पेज प्रॉपर्टी, यूजर प्रोफाइल, वो सारी चीजें हम सेट कर सकते हैं। पेज इनिट के ऊपर क्या होगा,
कंट्रोल्स की वैल्यू, कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज रिट्राइव होगी और वो इनिशियलाइज हो जाएगी। पेज प्रीलोड के ऊपर क्या होगा, व्यू स्टेट और पोस्टबैक के डेटा रिस्टोर होंगे, राइट। पेज लोड के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ऐसी सारी चीजें कर सकते हैं कि फाइनल जब वो ब्राउजर के अंदर लोड हो उससे पहले अगर हमें कोई चीज करनी है तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेटाबेस का कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं या फिर वेरिएबल की वैल्यू भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। कंट्रोल की इवेंट्स मतलब बटन की क्लिक इवेंट, सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल, ऐसी जो सारी इवेंट होती है वो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आफ्टर दैट इट इज पेज प्री रेंडर। एज यू नो कि अगर हमें फाइनल चेंजेस करने हैं, राइट, तो हम ये प्री रेंडर इवेंट का यूज कर सकते हैं ताकि वो कंट्रोल्स और पेजेस के ऊपर फाइनल चेंजेस कर पाए। मतलब एक बार अगर वो फाइनल चेंजेस कर देता है देन इट विल बी इजियर फॉर टू रेंडर द पेज। एंड आफ्टर दैट लास्ट इज पेज अनलोड। पेज अनलोड के ऊपर क्या होगा, जो भी कंट्रोल्स है उसकी प्रॉपर्टीज है, अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है ताकि हम बाद में पेज अनलोड कर पाए, मतलब पेज को डिस्ट्रॉय कर पाए, तो हम वो सारी चीजें पेज अनलोड के ऊपर कर सकते हैं। दैट इज कनेक्शन क्लोज कर सकते हैं, फाइल क्लोज कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज द टॉपिक दैट इज पेज लाइफ साइकिल, राइट। मतलब जब भी हम कोई भी पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वो पेज अगर फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट है तो ये सारे फेजेस एग्जीक्यूट होंगे, ये सारी इवेंट्स एग्जीक्यूट होगी, राइट। और उसके बाद हमें पेज ब्राउजर में मिलता है। इसीलिए हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि जब भी हम पेज फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है, बिकॉज उसको ये पूरी लाइफ साइकिल एग्जीक्यूट करनी होती है। लेकिन अगर हम वो सेम पेज को फिर से रिक्वेस्ट करते हैं तो ये पूरी लाइफ साइकिल एग्जीक्यूट नहीं होती है। दैट्स वाई हमें वो पेज तुरंत ही ब्राउजर के अंदर दिखाई देता है, राइट। सो दिस इज बिकॉज कि पेज के लिए जो लाइफ साइकिल है वो कैसे एग्जीक्यूट होती है, राइट। आफ्टर दैट there is a topic that is types of files and directories which are present within ASP.NET, right? मैंने आपको पहले ही बोला था कि ASP.NET अपने आप आपकी वेबसाइट के लिए पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, मतलब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डर्स क्रिएट करेगा, राइट। और उसके पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स है, वो उसको क्रिएट कर देगा, राइट। सो पहले हम डायरेक्टरीज देखते हैं, दैट इज फोल्डर्स देखते हैं। फर्स्ट फोल्डर इज app_browser, एज द नेम सेज, राइट। अगर आपको ब्राउजर की डेफिनेशन की फाइल स्टोर करनी है, इंडिविजुअल ब्राउजर की उसकी कैपेबिलिटीज डिटरमाइन करने के लिए, तो आप app_browser फोल्डर के अंदर वो ब्राउजर की फाइल आप स्टोर कर सकते हो। बिकॉज एज वी नो कि ASP.NET पेज ब्राउजर के हिसाब से रेंडर करता है, ब्राउजर की कैपेबिलिटी के हिसाब से वो रेंडर करता है, राइट। इसीलिए तो यहाँ पे ब्राउजर के लिमिटेशन नहीं है, कोई भी ब्राउजर में हम ASP.NET का पेज लोड कर सकते हैं। सो इसलिए अगर आपको ब्राउजर की डेफिनेशन के लिए, राइट, उसकी कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आपको ब्राउजर की फाइल स्टोर करनी है तो आप अपनी वेबसाइट के अंदर app_browsers फोल्डर के अंदर आप वो फाइल स्टोर कर सकते हो। आफ्टर दैट इट इज app_code फाइल, code फोल्डर। द सिंपल पार्ट इज दैट इसके अंदर कोड फाइल स्टोर होगी। अगेन आई रिपीट, app_code फोल्डर के अंदर कोड फाइल स्टोर होगी। नाउ कौन कौन सी टाइप की कोड फाइल स्टोर होगी, अगर कोई शेयर्ड क्लासेस है, ऑब्जेक्ट्स है, ताकि एक ही एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे पेजेस या फिर बहुत सारी फाइल्स उसको एक्सेस कर रहे हैं, एट दैट टाइम वो फाइल हम app_code फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। अगर VB का प्रोजेक्ट है, VB की वेबसाइट है तो उसका एक्सटेंशन .vb होगा। अगर C# की वेबसाइट है, C# का प्रोजेक्ट है तो उसका एक्सटेंशन .cs होगा, राइट। सो द थिंग इज दैट app_code फोल्डर के अंदर सारी कोड फाइल आपको मिल सकती है, राइट। मतलब अगर आप कोई क्लास क्रिएट करते हो तो भी वो app_code के अंदर ही जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पेज, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सप्लिसिट क्लास। एक्सप्लिसिटली आपको सिर्फ कोई क्लास क्रिएट करना है आपकी वेबसाइट के अंदर, इफ यू आर यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट इन योर वेबसाइट और आपको कोई क्लास क्रिएट करना है, सो वो क्लास के लिए जो .vb फाइल क्रिएट होगी वो आपको क्रिएशन टाइम पे ही पूछ लेगा कि आपको उसको app_code के अंदर स्टोर करना है कि नहीं करना है।
एंड ऑब्वियसली एज आई हैव टोल्ड, आपको क्या करना है, आपको उसको यस करना है ताकि वो पर्टिकुलर जो सोर्स फाइल है, कोड फाइल है, वो डायरेक्टली app_code फोल्डर के अंदर सेव हो जाए, ताकि जब भी आपको वो कोड को रेफरेंस करना है, वो फाइल को रेफरेंस करना है, आप क्या कर सकते हो, app_code फोल्डर में से ऑटोमेटिक आप उसको यूज कर सकते हो, राइट। आफ्टर दैट इट इज app_data। आपको पता ही है कि app_data के अंदर आपके पास जो डेटाबेस होगी उसकी फाइल्स उसके अंदर मिलेगी, राइट। नाउ डेटाबेस के लिए अगर हम एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस यूज करते हैं तो .mdf फाइल मिलेगी। अगर हम वो डेटाबेस को XML के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए XML फाइल्स भी हमें मिलेगी। और अगर हम वो पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए एक्सप्लिसिट डेटा सेट क्रिएट करते हैं, कोड के वक्त नहीं, डिजाइन के वक्त अगर हम एक्सप्लिसिट डेटा सेट क्रिएट करते हैं तो भी वो फाइल्स app_data के अंदर हमें मिलेगी। इन शॉर्ट वी कैन से कि अगर डेटाबेस के लिए अगर हमें कोई भी टास्क करना है, उसके लिए सारी फाइल्स हमें कहाँ पे मिल सकती है, दैट इज app_data folder. After that, there are another folder, that is app_global resources and app_local resources. As you can see, both the folders are related to the resources file, that is .resx or .resources extension, right? लेकिन ग्लोबल रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर फाइल तब आएगी जब उसकी असेंबलीज ग्लोबल स्कोप को बिलोंग करती हो, और लोकल रिसोर्सेज के अंदर फाइल तब आएगी जब वो लोकल स्कोप को रिफर करती हो, राइट। लोकल रिसोर्सेज के अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर स्पेसिफिक पेज के लिए अगर हमें कोई रिसोर्स फाइल स्टोर करनी है, यूजर कंट्रोल स्टोर करने हैं, या फिर मास्टर पेज के लिए कोई रिसोर्सेज स्टोर करने हैं, तो हम वो लोकल रिसोर्सेज वाले फोल्डर में हम स्टोर कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द थिंग कि हम ग्लोबल रिसोर्सेज में ऐसे रिसोर्सेज स्टोर करेंगे जो कंपाइलेशन होने के बाद वो असेंबलीज के अंदर कन्वर्ट होती है, और वो असेंबलीज ग्लोबल स्कोप को बिलोंग करती है, मतलब वो कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन लोकल रिसोर्सेज के अंदर पर्टिकुलर मास्टर पेज, पर्टिकुलर यूजर कंट्रोल, पर्टिकुलर पेज, राइट, फॉर दैट पर्टिकुलर पेज ओनली, वो सारे रिसोर्सेज हम लोकल रिसोर्सेज के अंदर स्टोर कर सकते हैं, राइट। अगर ग्लोबल के अंदर स्टोर करेंगे तो ऑब्वियसली पूरी एप्लीकेशन के अंदर वो एक्सेस कर पाएगा, लेकिन ये जो लोकल रिसोर्सेज के अंदर स्टोर करेंगे तो फिर वो पर्टिकुलर मास्टर पेज या फिर पेज के लिए यूज होगा। आफ्टर दैट इट इज app_web रेफरेंस। वेब रेफरेंस के अंदर जब भी हम वेब सर्विस कंसेप्ट पढ़ेंगे तब बहुत सारी फाइल्स ASP.NET खुद क्रिएट करता है हमारी वेब सर्विस के लिए। सो वो सारी फाइल्स को स्टोर करने के लिए वो अपने आप app_web references फोल्डर क्रिएट करेगा और उसके अंदर वो सारी फाइल्स को स्टोर कर देगा। कौन कौन सी फाइल्स हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल .wisdel फाइल, दैट इज WSDL फाइल, स्कीमा फाइल, राइट, डिस्कवरी फाइल, ये सारी जो फाइल्स है वो वेब रेफरेंसेस के वक्त क्रिएट होगी, और उस वक्त हमारी वेबसाइट के अंदर ASP.NET खुद एक app_web references का फोल्डर क्रिएट करेगा और उसके अंदर ये सारी फाइल स्टोर कर देगा। अनदर इज बिन डायरेक्टरी। आपको पता ही है कि बिन डायरेक्टरी के अंदर आपको कौन कौन सी फाइल मिल सकती है, फॉर एग्जांपल असेंबलीज फाइल, दैट इज DLL फाइल, किसके लिए हो सकती है, कंट्रोल्स के लिए हो सकती है, कंपोनेंट्स के लिए हो सकती है, या फिर हम कोई एक्सटर्नल एंटिटी को रेफरेंस कर रहे हैं, देन वो सारी चीज के लिए जो DLL फाइल की जरूरत है वो हमें कहाँ पे मिलेगी, बिन फोल्डर के अंदर मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप एक्सेल का जो मतलब एक्सेल शीट है वो आपको पेज के ऊपर लोड करनी है, राइट, तो उसके लिए आपको अलग नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और वो नेम स्पेस के लिए जो उसकी DLL फाइल है वो आपको रेफरेंस करनी पड़ेगी। सो एक्सेल बाय डिफॉल्ट ASP.NET की वेबसाइट के अंदर नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की मतलब एक्सेल के लिए DLL फाइल को रिफर करना पड़ेगा, और उसकी जो DLL फाइल है वो आपकी बिन फोल्डर के अंदर उसको रेफरेंस करना पड़ेगा। तो आप ये जो एक्सटर्नल कंपोनेंट है जो ASP.NET का खुद का नहीं है तो आप उसको रिफर कर सकते हो, राइट। एंड आफ्टर दैट द लास्ट फोल्डर इज दैट इज app_themes फोल्डर। ये तो हमें पता ही है बिकॉज हमने ऑलरेडी रिसेंट लेक्चर में ही इसका एग्जांपल देखा है कि .skin फाइल है, .css फाइल है,
वो ऑटोमेटिकली app_themes फोल्डर के अंदर मिल जाएगी, मतलब वो ASP.NET उसको app_themes फोल्डर के अंदर सेव कर देगा. Right, students? So these are the directories that are used within ASP.NET. That is app_browser, browser files के लिए, app_code, source code के लिए, that is .vb.cs, app_data, database files के लिए, global resources and local resources, that is the resources file, but it depends on the scope, global scope है या फिर local scope है. Web references, web services की files जो है उसको स्टोर करने के लिए, bin.dll फाइल्स है उसको स्टोर करने के लिए, एंड app_themes that is skin फाइल और css फाइल को स्टोर करने के लिए, राइट. एंड आफ्टर दैट वी विल सी द टाइप्स ऑफ फाइल्स, बिकॉज बहुत सारी फाइल्स आपको पहले से पता है, राइट. सो हमें सिर्फ यही देखना है कि उसके एक्सटेंशंस कौन कौन से है. अगर वो ASP.NET वेब पेज है, राइट, सो उसके लिए एक्सटेंशन क्या होगा, .aspx. अगर हम कोई यूजर कंट्रोल क्रिएट करते हैं, राइट, सो उसके लिए एक्सटेंशन होगा .ascx, मतलब अगर हम हमारा खुद का कंट्रोल क्रिएट करते हैं, राइट, सो उसके लिए एक्सटेंशन होगा .ascx. हमने देखा है कि ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास फाइल के लिए दैट इज global.asax, दैट इज एप्लीकेशन फाइल, उसका एक्सटेंशन क्या है, .asax. जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फोल्डर है दैट इज वेब रेफरेंसेस, उसके अंदर वेब सर्विसेज स्टोर, उसकी फाइल स्टोर होगी. सो वो वेब सर्विस की फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .asmx. ये आपके सिलेबस में है, 5th यूनिट के अंदर हम वो भी देखेंगे, राइट. कोई हैंडलर फाइल है जिसके अंदर हमने डायनामिक वेब कंटेंट जनरेट करने के लिए यूज की है, राइट, उसका एक्सटेंशन होगा .ashx, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है. हमने देखा कि app_browser फोल्डर के अंदर ब्राउजर रिलेटेड फाइल होगी, ब्राउजर की डेफिनेशन फाइल होगी. सो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .browser, बिकॉज हम उसके अंदर वो पर्टिकुलर ब्राउजर की कैपेबिलिटीज के लिए सारी डेफिनेशन हम स्टोर करेंगे. आफ्टर दैट इट इज कॉन्फ़िगरेशन फाइल, दैट इज web.config फाइल, उसका एक्सटेंशन क्या है, .config. सोर्स कोड फाइल, दैट इज .vb और .cs. अगर हम विजुअल स्टूडियो की वेब एप्लीकेशन के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, देन इट इज .cs proj अगर वो C# है, .vb प्रोजेक्ट, दैट इज अगर वो VB लैंग्वेज है तो. आफ्टर दैट कोई डिस्कवरी फाइल है वेब सर्विस के लिए, देन द एक्सटेंशन इज .disco, राइट. अगर वो कोई असेंबली फाइल है दैट इज कंपाइल्ड लाइब्रेरी है, देन इट इज .dll फाइल. मास्टर पेज है, देन इट इज .master. database file है, then it is either .mdf that is for SQL server, MDB that is for access, और अगर कोई resources file है then it is .resx, right, और .resources. अगर वो sitemap फाइल है, हमने देखा था web.sitemap फाइल जो sitemap कंट्रोल के साथ हमने यूज की थी, उसका एक्सटेंशन है .sitemap. थीम फाइल्स, उसका एक्सटेंशन है .skin. और अगर हम हमारी वेबसाइट के लिए सोल्यूशन फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होगा .sln, राइट. सो ओवर हियर हमने बहुत सारी फाइल्स पहले से देखी हुई है, दैट इज .skin, .sitemap, देन .mdf, .master, .cs, .config, .aspx, .asax, राइट. बहुत सारी ऐसी फाइल्स है जो हमने पहले से देखी हुई है. एंड देयर आर सम फाइल्स, फॉर एग्जांपल .ashx, .browser, फिर .resx, राइट. ये 3 to 4 फाइल्स आपके सिलेबस में नहीं है, राइट स्टूडेंट्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज. अब आज हम एक काम करते हैं, सिलेबस देखते हैं कि हमने कौन कौन सी चीजें अब तक कवर की है, राइट. सो हमने कौन कौन सी चीजें देखी है. इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट यूनिट, सो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने क्या देखा, क्या क्या किया है. What is ASP.NET, मतलब हमने जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स में किया था वो टर्मिनोलॉजीज और वो सारी चीजें. आफ्टर दैट वी हैव सीन दिस टॉपिक दैट इज कंपाइल कोड, कोड बिहाइंड एंड इनलाइन कोड. वो हमने ऑलरेडी ये जो ASP.NET वाला टॉपिक था उसके साथ देखा था. आफ्टर दैट वी हैव ऑल्सो सीन व्हाट इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, राइट. सो ये भी हमने कंप्लीट कर दिया है. 2.1 दैट इज व्हाट इज पोस्टबैक, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया. फिर 2.4 दैट इज मास्टर पेज, थीम्स एंड CSS, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया.
प्रैक्टिकली हमने पूरा डेटाबेस कंप्लीट किया है, लेकिन उसका थियरी पोर्शन बाकी है, राइट? सो दैट्स व्हाई मैं प्रैक्टिकल पोर्शन है दैट इज दिस वन, दैट इज डेटाबेस एक्सेस यूजिंग ADO.NET, मतलब प्रैक्टिकल जो पार्ट है उसको मैं टिक करती हूँ यहाँ पे। फिर ये जो पूरा फोर्थ यूनिट है वो हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद वेब ब्राउजर, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, कुकीज, क्वेरी स्ट्रिंग, सेशन, वेरिएबल स्कोप जिसके अंदर व्यू स्टेट आएगा, राइट? सो आई थिंक ये सारी चीजें हैं जो हमने कंप्लीट कर दी है, राइट? सो दीज आर द थिंग्स कि हमने, अगर हम सिलेबस देखें तो कंप्लीट हो गई है। उसके साथ साथ हमने थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कंप्लीट किए हैं, राइट? वो कौन कौन से टॉपिक्स है? सी, फर्स्ट यूनिट के अंदर ये कंप्लीट किया कोड, ये ऑल राइट। ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास वो हमने कंप्लीट कर दिया, राइट? फिर फोर्थ यूनिट के अंदर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के साथ साथ रिक्वेस्ट और सर्वर ऑब्जेक्ट भी हमने कंप्लीट किया, क्वेरी स्ट्रिंग के साथ हिडन फील्ड भी हमने कंप्लीट की, वेरिएबल स्कोप के अंदर व्यू स्टेट कंप्लीट किया, और हमने एप्लीकेशन विच इज सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक है वो हमने कंप्लीट किया। सारे कंट्रोल्स जो ASP.NET के अंदर है वो हमने प्रैक्टिकली देखे विद डेटाबेस इंटरेक्शन, हमने पेज लाइफ साइकिल देखी, एंड टाइप्स ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हमने देखी। मीन्स वी कैन से कि हमने इतना पोर्शन पूरा कंप्लीट कर दिया है, राइट? So students, these are the things के up till now within 26 lectures हमने कौन कौन सी चीजें कवर की है। Now within next lecture we will start with directives, right? So आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे पूछ सकते हो।